گائیڈ یاد آیا. کیا حضور؟ عالم ارواح میں میرے ایک پرستار اور رشید احمد صدیقی نے مجھے بتایا تھا کہ دلی میں میرے نام پر میاں ایوان غالب جیسی کچھ شاندار عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں. تو بھائی اس غالب خستہ کا قیام ایوان غالب میں کیوں نہ ہو جائے؟ ایوان غالب میں اور غالب کا قیام. حضور والا یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے. لیکن میاں کیوں ممکن نہیں ہے؟ ارے بات دراصل یہ ہے حضور کہ وہ لوگ تو 3-4 گھنٹے کے ہی 20-25 ہزار روپے وصول کر لیتے ہیں. اچھا. اب آپ ہی بتائیے آپ کا قیام وہاں کیوں کر ممکن ہوگا؟ کمال ہے بھائی. جب ایوان غالب میں غالب ہی قیام نہ کر سکے تو کیا ضروری تھا کہ اس کا نام ایوان غالب ہی رکھا جاتا؟ بات تو حضور آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ تو یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے لیجئے کہ یہ عمارتیں اس لائق ہی نہیں ہیں جہاں آپ جیسی مائناز شخصیت قیام کر سکے. تو پھر میاں تم ہی بتاؤ یہ قیام کا مسئلہ کیسے حل؟ اس کے حل تو بہت سے ہیں حضور، اور ایک حل تو میرے پاس بڑا ہی خوبصورت ہے. وہ کیا؟ وہ یہ حضور کہ شکور کی ڈنڈی کے وسیم خان اور آلوک جی دونوں اپنے بڑے جگری دوست ہیں. بھائی میں ان سے کہہ کر آپ کے لیے شکور کی ڈنڈی میں ایک خوبصورت سی جھگی کا انتظام کیے دیتا ہوں. جھگی؟ جی ہاں جھگی. غالب جس نے کبھی روش عام پہ چلنا پسند نہیں کیا، جس نے عوام کے ساتھ جینا تو جینا مرنا بھی گوارا نہیں کیا، وہی غالب آج ایک جھگی میں قیام کرے گا. کیا حل پیش کیا ہے جناب نے؟ ارے حضور آپ تو ناراض ہو گئے اور آپ میری بات کا اصل مطلب سمجھے ہی نہیں. بات دراصل یہ ہے حضور کہ وہ جھگیاں چند ہی دنوں میں ٹوٹنے والی ہیں. اچھا پھر؟ اور غیر معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت ان ٹوٹی ہوئی جھگیوں کے بدلے بنے بنائے مکان دے رہی ہے. اب ذرا سوچئے حضور، ادھر جھگی ٹوٹی ادھر مکان آپ کو ملا. بھائی آپ تو مفت میں ہی دلی جیسے اس مہنگے شہر میں ایک عدد مکان کے مالک ہو گئے. واہ میاں گائیڈ، واہ واللہ کیا حل پیش کیا ہے. میاں گائیڈ اس طرح کے منصوبے ہمارے دور میں نہیں تھے، ورنہ ہمیں کیوں ساری عمر ایک کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا، اور مکان بھی کیسا کہ میں اگر گھڑی بھر برسے تو چھت گھنٹہ بھر برسے اور اس پر اس نیک بخت کا ساتھ. یہ کیا؟ جوتیاں. وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ ہاتھ میں کیوں ہیں؟ بھائی آپ کے مسلح کی تعظیم و تکریم منظور ہے. کیا مطلب؟ اب تمام صحن تو مسجد ہو گیا، کوئی قدم رکھے تو کہاں رکھے اور کرے تو کیا کرے، اس لیے جوتے اٹھا کے ہاتھ میں لے لیے. آپ
आपसे कितनी बार कहा है कि आप मजहब का मजाक ना उड़ाया करें, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे कुछ रोजा नमाज भी कर लिया करो ताकि आखिरत का सामान हो जाए। जानता हूं सवाब ताअत और ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। हाँ हाँ, आपकी तबीयत भला इधर क्यों आने लगी? आपकी तबीयत तो तवाफ़े कूचा जाना के लिए मचल रही होगी, या फिर उसे फुर्सत के 4 दिनों की तलाश होगी ताकि तसव्वुरे जाना किए बैठे रहे। अच्छा अच्छा, ये जली कटी ही सुनाती रहोगी या कुछ खाने पीने का भी जिक्र होगा? खाने की आपको फिक्र ही कहाँ रहती है। हाँ, पीने का ख्याल जरूर रहता है। अव्वल तो कुछ पैसे हाथ आते नहीं, और अगर भूले भटके कुछ पैसे हाथ आ भी जाए तो वो आपकी शराब की नजर हो जाते हैं। भाई देखो बेगम, अब रिस्क देने का वादा तो उस वादाहू ला शरीक ने किया है, इसलिए उसकी क्यों फिक्र करूं। रहा सवाल शराब का, तो उसका वादा उसने नहीं किया, इसीलिए पहली फुर्सत में शराब का बंदोबस्त कर लेता हूँ। न जाने आपको इस शराब में क्या मजा मिलता है। अरे मैं कहती हूँ, आप ये हराम चीज छोड़ क्यों नहीं देते? भाई बेगम, आप मेरे दिल की कैफियत नहीं जानती। मुझे शराब पीने में कोई मजा नहीं मिलता, बल्कि मैं से गरज निशात है किस रूसिया को यकगूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। आपकी इस यकगूना बेखुदी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। सुबह से शाम कोई ना कोई कर्जा वसूल करने वाला तकाजा लिए दरवाजे पर खड़ा ही रहता है। आपको कभी इसका भी ख्याल आता है? हाँ, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारा सितारा गर्दिश में है। खुदा का इताब हम पर तारी है। न नमाज पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं, तो ऐसे में फाका मस्ती और तंगदस्ती ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगा? भाई देखो बेगम, मुझ फासिक और फाजिर पर खुदा का ये इताब समझ में आता है, लेकिन आप तो उसकी नेक बंदी हैं, हर वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल। फिर आप पर रहमत खुदावंदी का नुज़ूल क्यों नहीं होता? भाई आपके सितारे हर वक्त क्यों गर्दिश में रहते हैं? बातों में न तो आपसे कोई जीता है, न कोई जीत सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, कुछ रोजा नमाज भी कर लिया करो, ताकि दोज़ख के बजाय जन्नत का रुख कर सको। जन्नत? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ हाँ, उड़ाइए, जितना जी चाहे मजाक उड़ाइए, लेकिन जन्नत तो जन्नत ही है। लेकिन हमारा इस बारे में ये ख्याल है, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई जिसमें लाखों बरस की हूरें हों। तौबा, इस तरह तमस्खुर उड़ाना ठीक नहीं। न जाने खुदा को कौन सी बात बुरी लग जाए। भाई देखो बेगम, हम तो मर्द हैं, हमारा नमाज पढ़ना ठीक है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि हूरे गिल्मा मिलें, लेकिन आप किस लिए नमाज पढ़ती हैं? भाई आपको किसकी तलाश है? तौबा, कुछ तो खुदा कीजिए। अरे भाई, आप खुदा को गैर समझती हैं। भाई हम तो उसे अपना समझते हैं। अब तकलीफ होगी तो शिकायत तो करेंगे, और जरूर करेंगे, बल्कि हमसे अगर बात पुरस हुई तो साफ साफ कह देंगे। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक आदमी, कोई हमारा दमे तहरीर भी था। आपकी ये शायरी बारगाहे इलाही में काम आने वाली नहीं है, वहां सिर्फ नमाज रोजा ही काम आएगा। लेकिन आप न नमाज पढ़ते हैं न रोजा रखते हैं, और उस दिन वो गलती से मस्जिद में चले गए थे तो बिना नमाज पढ़े ही चले आए जनाब। अरे हाँ बेगम, वो उस दिन दरअसल क्या हुआ कि हम मस्जिद में पहुंचे कि कुछ शिकवे शिकायत कर सके। अब इतने में क्या देखा कि हमारा एक शागिर्द रशीद दुख्तरे अंगूर की झलक दिखा रहा है। बस फिर क्या था, उल्टे पांव वापस।
आपकी इन्हीं बातों से ना मेरा जी जलता है। अरे मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तो शराबी की दुआ भी कबूल नहीं करता। अरे बेगम, जिसे शराब मिल जाए उसे किसी और दुआ के मांगने की जरूरत ही क्या है? आपकी ये लफ्फाजी दरबारे खुदाबंदी में काम नहीं आएगी। मैं फिर कहती हूँ वहाँ सिर्फ नमाज रोजा ही काम आएगा। हाँ, लेकिन आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते। रोजा रखना तो खैर बहुत बड़ी चीज है। देखो बेगम, जहां तक रोजे का ताल्लुक है तो मैं तुमसे यही कहूंगा, सामाने खुरो ख्वाब कहाँ से लाऊं, आराम के असबाब कहाँ से लाऊं। रोजा मेरा ईमान है गालिब, लेकिन खस खाना बर्फाब कहाँ से लाऊं। ये उज्र, ये हाजिर जवाबी मैदान हश्र में काम आने वाली नहीं, वहाँ इंसान के आमाल ही काम आएंगे। लेकिन आप क्या रोजा रखेंगे? अल्लाह माफ करे, आप तो रोजे का एहतराम तक नहीं करते। अरे कौन कहता है कि हम रोजे का एहतराम नहीं करते? मैं रोजे पर यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, और न सिर्फ ये कि ईमान रखता हूँ बल्कि रोजे भी रखता हूँ। रहने दीजिए, रोजे भी रखता हूँ। हाँ, अब ये और बात है कि रोजे को बहलाता रहता हूँ। भाई कभी रोटी का एक टुकड़ा खा लिया, कभी थोड़ा सा पानी पी लिया, कभी हुक्के का एक दम लगा लिया। अरे बेगम, मैं तो रोजे को बहलाता हूँ और आप फरमाती हैं कि मैं रोजा नहीं रखता। अरे नेक बख्त, रोजा ना रखना और बात है और रोजा बहलाना और चीज। अच्छा ठीक है, मैं तो बस इतना कहती हूँ कि कुछ मगफिरत की भी फिक्र कर लीजिए, वरना मैदान हश्र में क्या जवाब होगा आपके पास। एक बात कहे बेगम, फरमाइए। हमारा हश्र आपसे यकीनन बेहतर होगा। हमसे बेहतर होगा? जी। वो कैसे? वो ऐसे कि आप तो उन्हीं नीले तहमत वालों के साथ होंगी जिनके तहमत के पल्लू में वो मिसवाक बंदी होगी, हाथ में टूटीदार बदनी होगी और सर मुंडे हुए होंगे। और हमारा हश्र? हाँ हाँ फरमाइए। हमारा हश्र बड़े बड़े जलीलुल कद्र आला नसब बादशाहों के साथ होगा, जैसे फिरौन, नमरूद, शद्दाद वगैरह वगैरह। और हम मूछें अकड़ाते हुए चले जा रहे होंगे, अमा 4 फरिश्ते इधर जुलूम में होंगे, 4 उधर। अरे हाँ बेगम, वो आप महल सरा देखाई? हाँ देखाई। कहिए कैसी लगी वो आपको? भाई दीवान खाना तो हम देख चुके हैं, लेकिन वो महल सरा देखने का मौका ही नहीं मिला, तो हमने सोचा कि महल सरा को आप ही देख के पसंद फरमा लेंगी। महल सरा तो मुझे पसंद आ गई, मगर उस मकान में लोग बला बताते हैं। बला? हाँ? अरे बेगम, क्या आपको एक बात आज तक पता नहीं? क्या? इस दुनिया में आपसे भी बड़ी कोई और बला है? क्या? मैं बला हूँ? मैं चुड़ैल हूँ? हाँ हाँ, अब तो मैं बला ही देखूंगी, मैं चुड़ैल ही देखूंगी। या खुदा! कभी मुझे बला कहते हैं, कभी मुझे चुड़ैल कहते हैं, कभी मुझे पाँव की बेड़ी कहते हैं। वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदले?